Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important sources, that is the Hindu and Indian Express. इन दोनों न्यूज़पेपर से जो भी important news है आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर के उसको डिस्कस करेंगे. So let's get started. And these are the list of the topic that I'll be discussing with you. Today is 12th of August. So the first topic is Russia developed world first COVID-19 vaccine. This is a good news which is coming from the Russia. Now the second topic is India and the Nepal upcoming meeting, because there was many relationship with India and Nepal was not going very well. Now the third topic is gender equality and the social media. This is also one of the important article that is published. The fourth topic is panel to discuss the vaccine logistics. And the last topic is doubter rights over the family property, because Supreme Court has ruled regarding the both and male and the female would be equal part of the property. And apart from this, we'll have some MCQs question at the end of this video and the explanation of yesterday question. तो कल के जो सवाल थे उसके आंसर मैं आपको बताऊंगा और उसके explanation भी आपको बताऊंगा. So stay tuned till end of this video. And we are organizing a topper talk, Mr. Shrestha Anupam, who have secured All India rank 19 in the Civil Service Examination 2019. So he'll be giving you the details, the tips about the preparation of the Civil Services Examination. So do not forget to stay tuned with the Apti Plus YouTube channel. And the timing for this is 6 to 7 p.m. on 13th of August. So starting the first topic, that is Putin declare the Russia that they have developed the first COVID-19 vaccine, and this is the first country which has developed commercially. It would be now available for the people as well. It will take some another time to get reach to the public, but this is something a good development which is coming amid the COVID-19, and this is precisely very important for your prelims examination and equally important for your general studies paper 2 and 3, right? Because in 3 we have science and technology and the development that take place on everyday lives. So Russian president has officially confirmed that Russia has become the first country to grant a regulatory approval of the COVID-19 vaccine, right? So there are 3 important countries which are there in the race. Basically, it is 4 important countries I'd like to tell you. So the first is India, United States, third is China and Russia. So these are some of the important countries. Even in fact, the United Kingdom is also doing all the best possible way to develop the COVID-19 vaccine as the earliest. The vaccine which was developed was named as Sputnik V. So the name which was given was on the name of the first satellite that was launched by the Soviet Union. So Russia was previously known as Soviet Union also. So the grant that has come basically took only 2 months to get the approval for the human testing. So this is also a concern which has been raised by the several epidemiologists and then basically the expert of the domain expert. They said Russia has given approval too early. So ये concern raise की गई है. Now Russia president daughter was also been vaccinated with the same vaccine. So this is to make people trust that the vaccine which has developed is actually working on the human. And Russia has quoted that 20 countries have pre-ordered billion of doses of the drugs to be delivered, right? So this is the good news which is coming amid the COVID-19. Now concern has been raised by the experts because the Russian government has taken a decision for the approval and they have approved the basically the drugs within 2 months. तो 2 महीने के अंदर ही उन्होंने सारे अप्रूवल दे दी. जितने क्लिनिकल ट्रायल्स थे सारे फेज को कंप्लीट किए गए. इवन फेज 1, phase 2 and phase 3 clinical trial were completed, and only about 10% of the clinical trial is successful. जितने भी उन्होंने टेस्ट किए उसमें ऑफिशियली जो डेटा इनके पास है वो 10% ही सक्सेसफुल रहे. एंड सम ऑफ द साइंटिस्ट फियर की जो रशिया ने जिस तरह से डिसीजन लिया है दैट वुड बी मोर ऑफ द नेशनल प्रेस्टीज एंड द सेफ्टी इशूज कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द वैक्सीन विच इज बीइंग डेवलप्ड. और रशिया के जो बिजनेस हैं जो कॉलमेंट सिस्टम दे हैव सेड दैट एक्सेप्ट द वैक्सीन डेवलप्ड बाय द मॉस्कोज गैलमे इंस्टीट्यूट टू पुश द मास प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ दिस ईयर. तो अभी डेवलप हो गई है. दिस इज वी आर इन द मंथ ऑफ बेसिकली अगस्त में है. सितंबर अक्टूबर बाय एंड ऑफ दिस एंड ऑफ द नवंबर और दिसंबर ओनली द वैक्सीन वुड बी अवेलेबल. So this is the official they're coming from the data which is coming from the Galway institutes.
ना अदर वैक्सीन स्टेजेस की अगर बात करें तो बेसिकली इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास इंडिया में वी हैव सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दैट इज़ वर्किंग वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन विद एस्ट्राजेनेका, यूएस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया काम कर रही है। उसके बाद वी हैव कोवैक्सीन, right? We have Covaxin, that is, it is working with basically other important firms are there. So Zydus Cadila is also there. So they are also working. Covaxin is basically from the Bharat Biotech. ठीक है, ये भारत बायोटेक डेवलप कर रही है इसको। तो इंडिया के जो भी अभी ट्रायल्स चल रहे हैं ऑलरेडी एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, आईसीएमआर ने 12 ऐसे साइट्स बनाए जहाँ पे 3 स्टेजेस जो है ह्यूमन ट्रायल के वो चल रहे हैं। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड अगर बात करें, एस्ट्राजेनेका प्लिक है, मॉडर्ना, दिस इज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूएस की फर्म कंपनी है जो कि कर रही है। दे आर स्टिल ऑन द फाइनल स्टेज ऑफ द ट्रायल। चाइना भी अपने स्टेज में है, बेसिकली दे आर ऑल्सो डेवलपिंग। सो ग्लोबली ऑलमोस्ट अगर पोटेंट की मैं बात करूँ तो 100 ऐसे हैं जहाँ पे ट्रायल चल रही है। बट ऐसे कुछ फर्म्स हैं जो ऑलरेडी अपने लास्ट स्टेज पे किसी भी क्षण, किसी भी महीने, एट द एंड ऑफ दिस मंथ ऑल्सो वेरी पॉसिबिलिटी दैट की वैक्सीन वुड बी डेवलप। At least 5 other countries are aligned. Within a month, they would be declaring कि क्या उनके पास results हैं. Now the other news, that is India and Nepal upcoming meetings. This is also a very important news because we have not very good relationship with the Nepal. I mean, last 1 year. So जब से बेसिकली लीपू लेक वाली इश्यूज हुई है तब से हमारी जो रिलेशनशिप है नेपाल के साथ काफ़ी अच्छी नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो गुड न्यूज दैट इज कमिंग, दैट वी आर इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप। जीएस स्टडीज़ के, जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन का सेक्शन मेंशन है, वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ इंडिया एंड नेपाल विल होल्ड अ स्ट्रक्चरल मीटिंग आफ्टर 9 months of the interim that was that affected the bilateral ties, and meeting will take place via video conference that with the view of the COVID-19 pandemic situation. And the meeting will take place in the Kathmandu, where the Nepal Foreign Secretary will lead a team of officials from India, and basically from India, the Indian ambassador to Nepal would be leading the team. Now, coming to the boundary dispute that have arises in the India and Nepal, that come in the November when India has published basically its new map by the bifurcation of Jammu and Kashmir and 2 union territories, where the abrogation of 370 and 35A was taken place. So after this हुआ क्या कि बेसिकली नेपाल ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दे हैव रेज्ड अ सीरियस कंसर्न, एंड नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ की जो असेंबली है, उन्होंने एक अमेंडमेंट पास किया where the parliament legislated the alteration of additional कालापानी, लीपू लेक एंड लिम्बुदेरा, जो वहाँ की जो रीजन है वहाँ पे नए मैप दिखाते हुए अपने रीजन्स में इनको दिखाया, राइट। एंड दिस रीजन इज प्रिसाइजली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब यहाँ से बेसिकली इंडिया से जब मानसरोवर यात्रा निकलती है तो ये रूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लीपू लेक और काला पानी वाला जो रूट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये उसको लेकर के भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, और ये बताया गया था कि इंडिया को जितना जल्दी हो सके, एक्सपर्ट की ओपिनियन थी कि रिलेशनशिप अच्छे करने चाहिए, नहीं तो चाइना इज टेकिंग द वैक्यूम विच इज़ क्रिएटेड बाय इंडिया। Now, how important is the meeting? Because equally it is very important कि जो relationship है, हमारे immediate neighbor है, नेपाल हो गए, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, इनके साथ हमारी relationship बहुत अच्छी होने की ज़रूरत है। And for the first time since the declaration of the Kalapani boundary dispute, India and Nepal are likely to meet the review project that is funded by the Indian government. और इंडिया इज बिल्डिंग रोड्स, बेसिकली जो तराई रीजन है वहाँ पे पोस्ट अर्थक्वेक के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी इंडिया ने किया है। बिल्डिंग द रेलवे लाइंस, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, पॉलिटेक्निक कॉलेज, oil pipeline and the border check post. So these are some of the infrastructure work that has been taken care by Indian government, and they are funding the particular the projects that has been taking place, right? Now government has also allocated 800 करोड़, जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने 800 करोड़ रुपए दिए हैं इस साल, ताकि जो बजट है दैट शुड बी प्रोजेक्टेड इन द नेपाल। सो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के जो रिलेशनशिप है उसमें खामियां देखी गई है, सो दैट हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड, और उसी कोशिश में दोनों देश लगी हुई है। नाउ द अदर टॉपिक इज जेंडर इक्वालिटी एंड द सोशल मीडिया। दिस न्यूज़ यू कैन फाइंड इन द हिंदू। यहाँ पे बात की गई है किस तरह से जो जेंडर इक्वालिटी है और जो ऑनलाइन के क्लासेस हो रहे हैं, या फिर जो ऑनलाइन जो प्रॉब्लमेटिक आई है बेसिकली फीमेल्स को, वुमेन्स को, उसको लेकर के बातें की गई है। तो ये आपके जनरल स्टडीज़ में पेपर 1 जहाँ पे जेंडर इश्यूज़ को लेकर के बातें हैं, वहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 की जो पेंडेमिक है उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को बढ़ाया है,
और खास करके वैसे चैलेंजेस जो वुमेन ओरिएंटेड है, वुमेन रिलेटेड है, दे हैव फेस द सीरियस प्रॉब्लम, राइट। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो हमारे हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस और जो साइबर क्राइम है कोविड-19 के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, विच मेड द गर्ल्स एंड वुमेन मोर वनरेबल। तो दिस इज़ अगेंस्ट द बैकग्राउंड, इसकी इसी पे एक रिपोर्ट आई है यूनेस्को, यूनिसेफ और वुमेन, यूएन वुमेन, यूएनपीए और साउथ एशिया फाउंडेशन ने, इन्होंने एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश की है टू सपोर्ट द नंदिता दास प्रोडक्शन लॉन्च द शॉर्ट फिल्म टू लिसन टू हर, राइट। इन्होंने एक फिल्म बनाया, नंदिता दास इज अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर who is willing forward to forecast a short film how situation of the women is across the world during the pandemic. Now this will contribute the breaking of the stigma around the issues and encourage women to speak basically वो अपनी बातों को रखे, speak करे and they should seek help. तो ज़रूरी है कि जो मेन मुद्दा है सोशल मीडिया के थ्रू, शॉर्ट फिल्म्स के थ्रू उनकी बातों को रखा जाए और लोगों को सारी जानकारी दी जाए कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। इससे होगा क्या कि एक बार किसी ऐसे तरीके से उनको अगर बैकिंग मिलती है या प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल बैकिंग मिलती है तो वो अपनी बातों को भी रख पाएंगे, उनकी जो प्रॉब्लम है, जो आपबीती है, उसको भी बता पाएंगे, राइट। ना कुछ अदर इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे यंग माइंड एंड फ्लेक्सिबल, देयरफॉर बेसिकली जो ये एज है, जो यंगस्टर की बात करें वुमेन्स में, सो दे हैव कंसंट्रेटेड एंड टू बी मेड शेप पॉजिटिव इन माइंडसेट एट द क्रिटिकल एज। ये एक ऐसा समय है, चाहे वो एडोलेसेंस फेज हो, चाहे वो बैचलर एज हो, यहाँ पे माइंड बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, तो इस टाइम पे उनको सारी चीज़ों को रीशेप करने की ज़रूरत है क्रिटिकल एज पे। और इसी को देखते हुए यूनेस्को ने क्या किया है, एक बुकलेट जारी किया है जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग एट द टाइम ऑफ COVID-19. So they have released a book named Safe Online Learning in the COVID-19. This would be a useful reference manual regarding the counter cyberbullying that will help the people, the adolescents, girls, men or women. And this booklet would developed in the partnership of National Council for Educational Training, जो NCERT है, उनके साथ मदद में ये बनाई गई है। ये PDF आपको गूगल सर्च करने पे मिल जाएगी। जब आप ये सेफ ऑनलाइन एंड COVID-19 डालेंगे PDF करके, तो सीधा आपको वो फर्स्ट लिंक में आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नाउ द एक्शन फॉर इक्वालिटी प्रोग्राम दैट इज अगेन डिलीवर्ड, इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन है, उन्होंने भी कहा कि दे हैव ट्रेंड 130 एजुकेटर अक्रॉस इंडिया, ताकि वो बताएं लोगों को किस तरह से जेंडर इक्वालिटी में काम करना है और किस तरह से एजुकेशनल इंटरवेंशन में काम करने की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया कि हमें जो जेंडर इक्वालिटी है उसके बारे में सही से लोगों को क्लास दी जाए, उसके बारे में जो गैप है अभी भी जेंडर इक्वालिटी को, उसको एजुकेशन के थ्रू ही पूरा किया जा सकता है, राइट। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो भी प्रोवाइड करती है एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी जो कि शेप करती है हमारी एजुकेशनल रिस्पॉन्सेस। और ये जो चेंजेस की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव होगा, राइट। नाउ द अदर टॉपिक इज पैनल टू डिस्कस द वैक्सीन लॉजिस्टिक्स, दिस इज देयर इन द हिंदू। बात करें हेल्थ मिनिस्ट्री की, तो उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया है जो कि एडमिनिस्टर करेगी। नीति आयोग के मेंबर VK पॉल हैं, इस सारी चीज़ों को बेसिकली एडमिन करेंगे। ही इज़ अ चेयरपर्सन, ही इज़ नॉट एक्चुअली द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, ही इज़ अ मेंबर ऑफ नीति आयोग हु विल बी हैंडलिंग द लॉजिस्टिक पार्ट, राइट। सो मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन टुडे 12th of August. So the meeting aimed to consider the logistic and ethical aspect of the procurement एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द COVID-19 वैक्सीन। जो वैक्सीन्स आनी है इंडिया में, उसके किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होनी है, कैसे सारी चीज़ों को रेगुलेट करना है, सेल परचेज एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है आफ्टर सेल्स जो होंगी, जितने वैक्सीन्स आएंगे, सरकार ये कोशिश कर रही है कि सारे लोगों को बहुत कम टाइम में ही वैक्सीनेट कर दिया जाए। Now the committee will also engage into the stakeholder including the state government, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि इंडिया में मास प्रोडक्शंस होनी है और इतने लार्ज पॉपुलेशन को कवर करने में कितना जल्दी भी किया जाए तो एटलीस्ट इट विल टेक 2 months, राइट। 2 months से पहले वैक्सीनेशन हो नहीं पाएगी। So they are preparing, we are also chasing to develop the vaccine. ऑलरेडी एम्स में ट्रायल चल रहे हैं, बहुत जल्द इंडिया भी इस तरह की चीज़ों को अनाउंस कर सकती है जिस तरह से रशिया ने अनाउंस किया है। Now the question on ethical aspects and the administration will be debated on August 12th, and several vaccine candidate is being tested around the world, and Russia has become the first country to develop the vaccine. Let's see who is the second country.
नाउ हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडेंस नोट के मुताबिक अभी प्रेजेंट में लेस देन 1% ऑफ पीपल आर हॉस्पिटलाइज्ड एंड आर ऑन द वेंटिलेटर्स and less than 3% of them are on the oxygen and less than 4% of the active cases are there in the ICU. तो ये प्रेजेंट स्टेटस है जब मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ. तो कमिटी जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने फॉर्मुलेट किया, उनको जो गाइडलाइन है, उनको प्रोटोकॉल बताया गया टू एक्सपीरियंसेस द कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम द कोविड-19 एंड दिस इज आफ्टर द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हर्ट एलिमेंट्स दैट इज कमिंग इन लाइट ऑफ द कोविड-19. जो कि पेशेंट जो डिस्चार्ज हुए कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, उनमें देखा गया कि पोस्ट रिकवरी के बाद भी उनको कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हर्ट एलिमेंट्स जो ओल्ड एज पीपल हैं उनमें भी अभी परसिस्ट कर रहा है. तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए इस पर भी डिस्कशन की जाएगी. Now the other topic is doubter rights over the family property. Supreme Court ने expand किया है right for doubters in the Hindu undivided family property. So this is also a very good news. जहाँ पे women empowerment को लेकर के बात की गई है. General Studies के पेपर 1 में ये बहुत ही ज़्यादा important है. आप जब ऐसे लिखेंगे तो उस पर ये चीज़ कोट कर सकते हैं. And at the same time a question can be asked in the case studies of the General Studies paper 4. Now recently Supreme Court has ruled that Hindu women की जो right है in the joint family, if they hire inherited ancestral property है जो उनके basically पूर्वजों की जो property है, they have the equal right to the male heirs. तो जितने उनके मेल उनके जो भाई हैं या फिर जो ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेल और फीमेल, सारे लोगों की जो right है वो equal होगी. Now the verdict make it clear that the amendment to the Hindu Secession Act 1956 granting equal right to the daughters and the inherent ancestral property that would be retrospectively effect. पुराने समय से उसको लागू किया जाएगा. It would be a retrospective effect. और this is something which has a very good impact on the society. बात करें जहाँ पे when it's come to property, बहुत सारे disputes होते रहे हैं इंडिया में. तो जहाँ पे daughters और son को एक equal right दिया गया है ancestral properties पे. सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि हिंदू वुमेन राइट टू बी ज्वाइंट इन देयर एंसेस्टर प्रॉपर्टी बाय बर्थ एंड डू नॉट डिपेंड वेदर देयर फादर वाज अलाइव और नॉट, इनैक्टेड इन 2005. तो अगर किसी के फादर भी नहीं है और प्रॉपर्टी है, उससे अगर 2000 पहले से चीज़ें इनैक्ट हुई है, सो दे वुड हैव अ राइट टू हायर दैट. सो इट वुड बी इक्वली डिवाइडेड इन द सन एंड द डाउटर, राइट. एंड जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 2005 की, दैट ऑल्सो गिव द हिंदू वुमेन राइट टू बी द ज्वाइंट लीगल हायर इन द सेम वे द मेल डज. तो यहाँ पे ये राइट भी प्रोवाइड करती है कि जितने राइट सन की है उतने ही राइट उसकी डॉटर की भी है, राइट, उस फैमिली में. एंड इवन बिफोर 2005 अमेंडमेंट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, Tamil Nadu make it clear that they change this law, and Kerala has abolished the Hindu joint family in 1975. तो इन स्टेट्स ने abolish किया है, बट अब सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से रूलिंग आई है, जजमेंट आई है, एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जिसको कोई चैलेंज भी नहीं करेगा. एंड दिस इज समथिंग विच हैज कम अ ग्रेट जजमेंट विच वुड बी अगेन ऑगमेंटिंग द लाइफ एंड द क्वालिटी ऑफ द वुमेन, राइट. नाउ वी हैव लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड चैनल, बेसिकली एक टेलीग्राम पे आंसर राइटिंग चैनल है जहाँ पे हर सुबह आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और इसके आंसर आप हमें 6 PM तक भेज सकते हैं. तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास जहाँ पे अपने आंसर राइटिंग आप इम्प्रूव कर सकते हैं. वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर ले जहाँ पे मैंने इसकी ज़्यादा जानकारी दी हुई है. नाउ कमिंग टू द आंसर्स ऑफ द यस्टरडे क्वेश्चन, जो कल के सवाल थे उसके ऑप्शंस और एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए. And the explanation goes like, statement 1 is correct, that the term of the office of the prime minister is not fixed and he hold office during the pleasure of the president. However, he does not mean that the president can dismiss prime minister at any time, because so long the prime minister enjoy the majority support of the Lok Sabha, he cannot be dismissed by the president. However, if he lose the confidence of the Lok Sabha, he must resign to the president and can dismiss by. और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, दैट द सैलरी अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट टाइम टू टाइम एंड नॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो दिस इज द सोर्स ऑफ रेफरेंस फ्रॉम हियर इज इंडियन पॉलिटी बाय M. Lakshmikant. Second question, the correct option here is again A. Statement 1 is correct, that the inter-creditor agreement is a part of Sashakt plan approved by the government to address the problem of resolving band loan. और जो इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट है दैट एम्स फॉर द स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एंड द बैलेंस शीट्स.
तो जिस तरह की जो एग्रीमेंट है इसमें मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन 2/3 ऑफ द लोन ऑन द कॉन्स्टोरियम लीडर्स शुड बी सफिशिएंट टू ओवरराइड एनी ऑब्जेक्शन, राइट। और जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है, दैट इज द इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट इज एम्ड एट रिजॉल्विंग द इश्यू लोन अकाउंट फॉर द ₹50 crore एंड अबव अंडर द कंट्रोल ऑफ द ग्रुप ऑफ लेंडर्स। तो ये इसके एक्सप्लेनेशन है। द सोर्स ऑफ रेफरेंस हियर इज फ्रॉम द PIB। नाउ MCQs क्वेश्चन, जो आज की क्वेश्चंस हैं उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। First question is from the modern history. Consider the following statement. The Brahmo Samaj pioneered the cause of widower marriage and Pandit Ishwar Chand Vidyasagar proactively participated in it, right? So this is a very simple question but a tricky one. You have to choose the correct option, that is A, B, C and D. So whatever you feel is the correct answer, write your answer in the comment sections down below. Second question is from the geography. With reference to PT soil, consider the following statement, because UPSC tend to ask a question on the soil as well. The properties of the soil. So the soil are infertile and does not support the vegetative growth basically, and they are found in the area of the heavy rainfall and high humidity. So if you have read NCERT well, you can easily answer this question. A, B, C or D. So whatever you feel is the correct answer, write down your answer in the comment section and participate more and more, engage yourself in the question and series so that we could come up with a more productive question that will ultimately help you in the real examination, right? And those of you who have not subscribed to our channel, do not forget to subscribe Apti+ Academy for Civil Services on YouTube, and do not forget to hit a like button on this video. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.